معزز سامعین کرام، انگریزی اعتبار سے جو سال چل رہا ہے 5-6 دنوں کے بعد وہ سال مکمل ہونے والا ہے اور ہماری زندگیوں میں انگریزی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ایک نیا سال آ رہا ہے اور اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو انگریزی نئے سال کا علم ہوتا ہے، اسلامی نئے سال کا علم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب تاریخ لکھتے ہیں، کاروبار کرنے والے، اسکول کالج میں پڑھنے والے اور آفس وغیرہ میں کام کرنے والے اور عام طور پر لوگ جو خط وغیرہ لکھتے ہیں یا واٹس ایپ پر یا کسی اور چیز میں میسیج لکھ کر کے بھیجتے ہیں تو اس میں انگریزی تاریخ کو لکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کو کوئی بھی نہیں لکھتا ہے، نہ اس کو پتہ رہتا ہے کہ آج اسلامی تاریخ کتنی ہے، یہ مہینہ چاند کا کون سا چل رہا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو لکھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ نہ آپ وہاں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ وہاں کچھ مال خیرات کر رہے ہیں، نہ ہی آپ وہاں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صرف تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، اور اسلامی تاریخ کو آپ نے لکھا۔ کسی کو خط لکھتے ہوئے، میسیج بھیجتے ہوئے یا کسی کو بتاتے ہوئے آپ نے صرف اسلامی تاریخ کو لکھا کہ آج چاند کا کون سا مہینہ ہے اور کتنی تاریخ ہے، تو اس لکھنے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے شب و روز کے اعمال اور سال بھر کے اعمال کا دار و مدار اسلامی مہینوں پر ہے۔ نمازوں کے اوقات، اس کا دار و مدار سورج کے طلوع ہونے پر، سورج کے بلند ہونے پر، سورج کے ڈھلنے پر اور سورج کے غروب ہونے پر ہے، اور باقی ہمارے سال بھر کے اعمال کا، اور طلاق اگر کسی عورت کو ہو جائے تو وہ عدت کس طرح گزارے، ان کے دنوں کا حساب کیسے لگائے جائیں، سال میں زکوٰۃ آپ پر کب واجب ہوتی ہے، ان تمام زندگی کے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا دار و مدار اسلامی تاریخ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جس طرح جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی علاقے میں، مثال کے طور پر ہمارا مدن پلی شہر ہے،
اس کے اطراف و اکناف کا جو ایریا ہے، جہاں تک پہنچنے پر آدمی مسافر بن جاتا ہے، 48 میل تقریباً 77 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، 77 کلومیٹر، اتنا جو ایریا ہے سرکلر، اس ایریے میں اگر کوئی ایک آدمی بھی چاند کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، تو وہ پورے کے پورے ایریا والے گنہگار ہیں، پورے کے پورے اتنے علاقے والے مسلمان گنہگار ہیں۔ تو چاند کی تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کو لکھنا یہ ضروری ہے، فرض کفایہ ہے۔ آپ نے سن لیا ہے، اب آپ کو آج سے ہی عمل شروع کر دینا ہے۔ بہرحال تو انگریزی اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم چونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ایمان والے بھی رہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین معاملہ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو غیروں کا جو کلچر ہے، غیروں کے اندر جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہ ہمارے ایمان والے بھائیوں کے اندر بھی، وہ سب مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بلا آ رہی ہے، ہیپی نیو ایئر کی بلا، آپ ساری دنیا کا سروے لیجئے، اگر آپ کے پاس نالج ہو، اگر آپ سرچ کر سکتے ہو، ساری دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا دسمبر کی آخری تاریخ میں جتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی نہیں پی جاتی ہے۔ ارے سال کا آخری دن چل رہا ہے، اگلا نیا سال آ رہا ہے، پی لو۔ پینے والے تو پیتے ہی ہیں، جو آدمی صرف دیکھنے کے لیے گیا، اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا، اس کا دل پینے کو نہیں چاہتا، وہ بڑا پاک باز ہے، لیکن دوستوں کے کہنے میں آ جاتا ہے، وہ بھی ایک باٹل مار لیتا۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ گیا، وہ بھی ایک دم اس دن مار لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ساری دنیا میں دسمبر کی 31 تاریخ کو جتنی شراب فروخت ہوتی ہے، جس قدر سیل ہوتا ہے، اتنی شراب پورے سال میں کبھی بھی بیچا نہیں جاتا اور خریدا نہیں جاتا۔ تمام کی تمام برائیاں پورے سال جو ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں اس ایک تاریخ میں ہو جاتی ہیں اور ہائی لیول پر ہوتی ہیں، اس کا پرسنٹیج سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ شریک ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو مسجد سے دور ہیں، صرف عید بقرعید میں آنے والے ہیں یا کسی کے جنازے میں آنے والے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں۔ ان کے بچے بچیاں، بیوی بہن بھائی، یہ سب اس کے اندر مبتلا ہیں۔ نیا سال نیا کپڑا خریدا جا رہا ہے، گھر کو چونا مارا جا رہا ہے، عورتیں میک اپ کر رہی ہیں، بچے کھلونے وغیرہ خرید کر کے لا رہے ہیں، اور گریٹنگ کارڈز وغیرہ خریدا بیچا جا رہا ہے، اور اس کے اندر لکھا جا رہا ہے، اور سارا کام چل رہا ہے۔ وش یو اے ہیپی نیو ایئر۔ ذرا کبھی کسی نے سوچا، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا،
किसी माँ ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, ये जो नया साल आ रहा है ये तुझे क्या पैगाम देता है? ये जो तुम हैप्पी हैप्पी करके चीख मार रही हो, इसके पीछे फंसे पर्दा तुझको क्या पैगाम मिल रहा है? कभी किसी बाप ने या माँ ने समझाया है? किसी दोस्त ने किसी दोस्त को समझाया है? इस पर गौर करने की बात है, जरूरत है। हमारी जिंदगी में जो नया साल आता है वो हमें बताता है कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी में से एक और साल घट गया है। तू अपनी मौत के एक साल और करीब हो गया है, मरने के करीब तू जा रहा है। ये नया साल हमें पैगाम दे रहा है कि तू अब मौत के करीब है, कब्र के करीब जा रहा है। मैंने एक सूरत तिलावत की है आपके सामने, सूरतुल अस्र इसको कहा जाता है। सूरह अस्र बहुत छोटी सूरत है। कुरान करीम की जो छोटी सूरतें हैं उनमें से एक छोटी सी सूरत है, 2 लाइन की सूरत है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह पाक ने बेसिक रूल्स बयान किया है। ऐसी बातें अल्लाह ताला ने इस छोटी सी सूरत में बयान किया है कि अगर हमने उन बातों को अपनी जिंदगी में अपना लिया, इख्तियार कर लिया, उसको फॉलो किया, तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। बहुत मामूली सी सूरत। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की 114 सूरतें नाजिल न करता, 30 पारे ना होते, सिर्फ एक ये सूरत होती सूरह अस्र, तो इंसानों की हिदायत के लिए, गाइडेंस के लिए, रहनुमाई के लिए कौन सा सीधा रास्ता है, कौन सा गलत रास्ता है, सही क्या है, गलत क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, जन्नत को ले जाने वाला काम कौन सा है, जहन्नम को ले जाने वाला काम कौन सा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आदमी सिर्फ यही एक सूरत से समझ जाता। ऐसी ये सूरत है। और एक सहाबी फरमाते हैं कि सहाबा के दरमियान 2 आदमी ऐसे थे, 2 सहाबा रजी अल्लाह अन्हुमा ऐसे थे, जब भी वो आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते, सलाम वगैरह करते और उसके बाद रुखसत होते, तो इनकी हर मुलाकात के अंदर एक दूसरे एक नसीहत किया करते थे। हर मुलाकात में 2 सहाबा ऐसे थे, जब भी मुलाकात करते तो वो एक दूसरे को एक नसीहत किया करते थे। क्या? यही सूरत पढ़ करके सुनाते थे। ये सहाबी सूरत को पढ़ा, उसको सुनाया, उसने ये सूरत को पढ़ा और इसको सुनाया। याद दहानी, मेमोराइज, बार बार रिवाइज किया करते थे, बार बार रिपीट किया करते थे। इस सूरत का मजमून, इसके अंदर जो टॉपिक है वो ऐसा है। क्या है इस सूरत के अंदर? अल्लाह पाक ने कसम खा करके बयान किया, वल अस्र, जमाने की कसम। ये जो जमाना चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो वक्त चल रहा है, इसकी अल्लाह पाक ने कसम खाई है। हम लोग कसम नहीं खा सकते। वक्त की कसम, मां की कसम, बाप की कसम, ये सब जायज नहीं। कसम सिर्फ अल्लाह की खाना जायज है, वो भी बिला जरूरत
बगैर किसी मजबूरी के नहीं खा सकते। अल्लाह के लिए जायज है कि वो अपनी मखलूक की कसम खाए। कसम खाने का मकसद क्या है? कसम खाने का मकसद है जिस चीज की कसम खाई जा रही है उसकी अहमियत और उसके इंपॉर्टेंस को बयान करना है। ऐ इंसान, मैं कसम खा रहा हूं जमाने की। ये जो जमाना है, जो जिंदगी तुमको मिली हुई है, 50 साल की या 60 साल की या 70 साल की या उससे ज्यादा की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आमार उम्मती मा बैना 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है। एवरेज परसेंटेज निकाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, मेरी उम्मत के जो इंसान हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरब के, अजम के हैं, सारी दुनिया में रहने वाले जो इंसान हैं, उनकी उम्रें कितनी होंगी? 60 से लेकर 70 साल के दरमियान होंगी। कोई उससे पहले मर जाता है, कोई उससे आगे बढ़ जाता है, वरना एवरेज इतना है। अल्लाह पाक ने जमाने की कसम खा करके बताया, आगे नसीहत की है, जमाने की कसम खाया कि ऐ इंसान, जो जिंदगी तुमको दी गई है, इस जिंदगी को बड़ी गनीमत वाली समझो। इंसान एक मर्तबा दुनिया में आ जाता है और मर करके चला जाता है, उसके बाद उसको नई जिंदगी मिलने वाली नहीं है। उसके बाद उसको नई जिंदगी मिलने वाली नहीं है। आदमी जब मर जाएगा, अल्लाह के पास चला जाएगा, कयामत का दिन होगा, वहां कहेगा, रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नामल सालिहन। ऐ अल्लाह, आज हमने देख लिया कि तेरी खुदाई ही है सारी कायनात में, तू ही एक परवरदिगार है, तेरे सिवा सब के सब बातिल माबूद है। ऐ अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, फरजीना, दुनिया में एक और बार भेज दे, दुनिया में एक और मर्तबा भेज दे, नामल सालिहा, नेक काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे काम करेंगे, मक्का मस्जिद का दरवाजा पकड़ लेंगे, नमाज ही नमाज पढ़ते रहेंगे, ब्याज नहीं खाएंगे, सूद नहीं खाएंगे, चीटी का हराम का कारोबार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जिना नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नामल सालिहा, अच्छे काम करेंगे। ऐ अल्लाह, एक मर्तबा दुनिया में भेज दे। लेकिन दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। कयामत वाले दिन आदमी तमन्ना करेगा कि वो अपने आप को बचाने के लिए उसके पास जो कुछ है अल्लाह के सामने पेश कर दे। मेरी बिल्डिंग भी ले ले, मेरा मकान भी ले ले, दुकान भी ले ले, कारोबार में जितना पैसा कमाया है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, सोना है, चांदी है, हुकूमत है, बल्कि अगर सारी दुनिया का भी वो आदमी मालिक रहा हो, सारी दुनिया को लेकर के अल्लाह के सामने पेश करना चाहेगा। ऐ अल्लाह, ये सब कुछ ले ले और मुझे माफ कर दे, छोड़ दे, जहन्नम के अजाब से मुझे बचा ले और दुनिया में मुझे भेज दे, नहीं होगा। यहां रास्ते में जाते हुए आपने फकीर को 1 रुपया दे दिया, गरीब रिश्तेदार को 5,000 रुपया दे दिया, बेवा यतीम मसाकीन को आपने मदद कर लिया, ये आपको वहां काम आएगा। दुनिया में जो करना है कर लो, जिंदगी मुख्तसर है, उसके बाद मिलने वाली नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके अंदर हर तरह की चीजें आती रहती हैं, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी बीमारी है, कभी सेहत और तंदुरुस्ती है,
کبھی مالداری ہے، کبھی غریبی ہے، کبھی نفع ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی ٹینشن ہے، کبھی کچھ اور ہے۔ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح چلتی رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے فرماتے ہیں، مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کے پاس گیا، برف بیچنے والا، اس کے پاس گیا، اس کو میں نے دیکھا وہ برف بیچ رہا ہے تو مجھے یہ سورہ عصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ یہ جو سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سورت کی تفسیر پریکٹیکلی مجھے برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گئی۔ کیسے سمجھ میں آئی؟ حضرت فرماتے ہیں، برف بیچنے والا برف بیچنے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برتے گا، سورج کی گرمی میں اس کا برف پگھلتا چلا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ اس کا برف پگھلتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ اس سے ٹپکتا رہتا ہے۔ ذرا سی بھی اگر اس نے غفلت کی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ 1000 روپیہ کا برف خرید کر کے لایا، شام تک اس کو اس کے 2000 بنانے ہیں، اگر نہیں بنایا اس کا برف پگھل جائے گا، اصل بھی چلا جائے گا 1000 روپیہ۔ اسی طرح بالکل انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا گھٹتا جا رہا ہے۔ ابھی صبح ہوئی تھی، پھر ظہر کا وقت آ گیا، 12:30 بجے تھے، اب 1:15 بج گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے، ایک ایک سیکنڈ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ گھنٹہ آئے گا، دن ختم ہوگا، ہفتہ آئے گا، مہینہ ختم ہو جائے گا، سال ختم ہو جائیں گے۔ 2020 کا سال ختم ہو گیا، 21 آ گیا ہے، 1441 اسلامی سال ختم ہو گیا، 1442 چل رہا ہے، جمادی الاولیٰ یہ آ گیا ہے، اور اس سے پہلے ربیع الثانی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وقت رکتا نہیں ہے۔ برف بیچنے والے نے برف بیچ کر کے 10 روپیہ لے لیا، اب یہ اس کا 10 روپیہ گلے گا نہیں، اس کے کام آئے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا ایک ایک سیکنڈ اگر ہم نے وصول کر لیا، اچھے کام کر لیے، سبحان اللہ کہہ دیا، نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دینے کا وقت آیا زکوٰۃ دے دیا، حج کرنے کا وقت آ گیا حج ادا کر دیا، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، گناہوں سے بچنے کا وقت آ گیا گناہوں سے بچے، آنکھوں کی حفاظت کا نمبر آیا آنکھوں کو بچا لیا، ہاتھ کا صحیح استعمال کر لیا، پیر کا صحیح استعمال کر لیا، ایک ایک لمحہ ہم نے اپنی زندگی کی نگرانی کی تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ایک لمحے میں ہم نے جو کچھ کیا ہوا ہوگا وہ ہمیں قبر میں آئے گا، قبر میں ہمارا ساتھ دے گا، اور آخرت والی ہماری زندگی سدھر جائے گی۔ تو ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اللہ پاک نے زندگی کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ یقینی طور پر کان کھول کر کے سننے والی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اپنی فطری طبعی اور نیچرلی اس کی جو ساخت ہے بناوٹ ہے، اس اعتبار سے انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، کیونکہ زمانہ ایسا ہے چار طرف گناہوں کا ماحول ہے۔ سر دائیں طرف کو گھماؤ یا بائیں طرف کو گھماؤ،
सामने देखो, पीछे देखो, ऊपर निगाह को ले जाओ या नीचे देखो, हर तरफ हमारा माहौल कैसा है? गुनाहों का, शिर्क का, कुफ्र का, बिदआत का, रस्म और रिवाज का माहौल है। और इंसान की जिंदगी ये अपना वक्त पूरा करने के लिए आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारा टाइम लैप्स हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक एक सेकंड की जिंदगी हमारी घटती जा रही है। नया साल आकर के हमें बता रहा है कि तेरी जिंदगी एक और साल घट गई, तू एक और साल कब्र के करीब हो गया, मौत के करीब चला गया। हर इंसान क्या है? घाटे में है, नुकसान में है। पहले जवान था, अब बूढ़ा हो गया, दाढ़ी में एक एक बाल सफेद नजर आने लग गए, दांतों के अंदर जो सफेदी है वो पीले रंग में तब्दील होने लग गई है, चेहरे में झिल्लियां आ रही हैं, चल नहीं पाता सही से, कमर ने जवाब दे दिया है, आगे चलते चलते अब चलने फिरने के भी वो काबिल नहीं रहता, बस हाउस अरेस्ट में वो रहता है, क्वारंटाइन, घर के अंदर, बाहर नहीं जा सकता, घर के अंदर ही वो रहता है और बिस्तर पर पड़ा रहता है। एक वक्त ऐसा आता है अर्ज़लिल उम्र, बिल्कुल ऐसी हालत उसकी हो जाती है, पेशाब पाखाना करने की भी ताकत नहीं रहती, खुद से ही पेशाब निकल जाता है, खुद से ही पाखाना आ जाता है, साफ भी कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बात याद आ गई, बता देता हूं। एक मर्तबा एक साहब ने मुझे बुलाया कि हमारे घर में एक रात गुजार करके जाओ, एक रात गुजार करके जाओ। हमें डर लगता है, हमारे घर में लोग बोलते रहते हैं घर में क्या कि शैतान है, बला है, बदतर है, रात में क्या कि आवाज आती है। लोगों के ख्यालात, वहम, दिन भर पिक्चर देखते वो सब नहीं बोलते, दिन भर डरावने आवाज सुनते हैं मोबाइल में, वो सब नहीं बोलते। घर में बला है, मुसीबत है, तावीज पलीता चाहिए। खैर मैं चला गया, इधर उधर की बातें होते 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 वो अपने बाप के बारे में कहने लगे। हमारे अब्बा जहां देखो वहां हकते रहते हैं, मूतते रहते हैं, ऐसे ही उसके अल्फाज थे। बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करके उसने अपने बाप के बारे में कहा कि बड़ी परेशानी होती है सफाई करने में, ये है वो है। मैंने कहा तू भी जब छोटा था तू भी इधर उधर हकता मूतता था, बल्कि बच्चे माँ बाप के मुंह में भी पेशाब कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? जब उठा लेते हैं, कपड़े खराब कर देते हैं, बिस्तर खराब कर देते हैं। अगर तेरे माँ बाप ने भी तुझे इसी तरह फेंक दिया होता तो क्या हालत होती? आज तू मेरे सामने बात करने वाला ना होता। माँ बाप की कदर करो, उनकी खिदमत करो, वो बूढ़े हो गए हैं, नेमत समझो, उनका पेशाब तबर्रुक समझो, बरकत वाली चीज समझ करके साफ किया करो, उनका पाखाना अपने हाथों से साफ किया करो। 1000 साल भी अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का पेशाब पाखाना साफ करे तब भी वो माँ बाप की कुर्बानियों का बदला नहीं दे सकता। समझ में आ गई बात? बीच में बात याद आ गई तो मैंने कह दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आदमी की उम्र खत्म होती जा रही है और इंसान माहौल में खसारे में है, इतना बुरा माहौल है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया 4 काम कर लो तो तुम खसारे में नहीं हो, तुम कामयाब हो जाओगे। क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला काम अल्लाह की जात पर और अल्लाह ने जिन जिन चीजों के बारे में फरमाया उन पर कामिल ईमान रखना, अल्लाह की जात से होने का यकीन अपने दिल में पैदा करना। आज हमारी मुसलमान औरतें गैरों के बुतखाने में जा रही हैं, कोई बीमारी आ गई है,
कोई बीमारी आ गई, पड़ोसन ने बता दिया कि फला मंदिर में जाओ और वहां जाकर के नारियल फोड़ करके आओ या हल्दी लगा करके आओ और तुम भी लगा लेना, तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी या बच्चे की बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर को दिखा लिया, इधर गई उधर गई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, बिल आखिर वो मजबूर होकर के वहां जाकर नारियल मार करके आ रही है। आज हमारी मुसलमान औरत का ऐसा ईमान है, इतना कमजोर है, कुफर के आमाल को, शिर्क के आमाल को इख्तियार कर रही है। अल्लाह की जात से होने का यकीन दिल से निकल गया है, मखलूक और गैरुल्लाह से होने का यकीन हमारी मुसलमान औरतों के अंदर खास करके आ गया। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये सब खसारे में है, घाटे में है। अल्लाह की जात से होने का यकीन पैदा करो। बच्चे को बीमारी है, इलाज कराओ, जिंदा रहेगा रहेगा, मर जाएगा मर जाएगा, तुझसे कोई अल्लाह ताला पूछेगा? नहीं पूछेगा। तेरे बस में जितना है उतना कर, इलाज कराओ। शिर्क वाले आमाल, कुफ्र वाले आमाल अगर करने जाओगी तो खसारे में चली गई, ईमान न रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह की जात पर और रसूलों पर और किताबों पर आसमानी जो नाजिल हुई, बाकी जितनी भी चीजें हैं, मौत के बाद वाली जिंदगी, कयामत की जिंदगी, इन तमाम चीजों के ऊपर कामिल ईमान रखने वाले ये खसारे में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, वामिलुस सालिहात, सिर्फ दिल में ईमान रख लेने से काम नहीं चलेगा। आज हमारा मुसलमान, नाम का मुसलमान, क्या नाम भाई? अब्दुल्ला। अब्बा का नाम क्या? फला। नमाज पढ़ने आओ, नियत बांधना नहीं आता, हाथ बांधना नहीं आता, सर पे टोपी रखना नहीं मालूम, पैर कैसे रखना नहीं मालूम, सूरे फातिहा याद नहीं है, कुछ भी नहीं। जनाजे में मां या बाप सवार होकर के आते हैं मर करके, तो बेटा पीछे खड़ा रहता है। मां के लिए जनाजे में क्या दुआ पढ़ना है बेटे को मालूम नहीं। ऐसे बेटे को जिंदा रहने का क्या फायदा है? कान तो मर जाएंगे दुआ याद नहीं तो मर जाओ को हजरत बोलेंगे को। एक मिसाल है, तंबी के लिए बोल रहा हूं। डूब मरने का मकाम है ऐसे बेटे को कि बाप जनाजे में आया है, मां का जनाजा है और बेटे को 4 लाइन की दुआ तक नहीं आती है। सुन लेते हैं, चले जाते हैं, बड़ा अच्छा बोले हजरत, लेकिन याद कभी नहीं करते। अगली जुमा को फिर आएंगे, फिर सुन लेंगे, बड़ा अच्छा बोले, लेकिन फिर भी याद नहीं करते। बहरहाल, तो अल्लाह पाक ने फरमाया दूसरी बात क्या है? वामिलुस सालिहात, और नेक आमाल मुसलसल करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लिए, एक मर्तबा बयान सुन लिया, दिल के अंदर कुछ फर्क आ गया तो नमाज का एहतमाम शुरू कर दिया, फिर कुछ और वाकया पेश आ गया, दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह मुझे फलां चीज चाहिए, दुआएं मांग रहा है, वो चीज मिल गई, अल्लाह ताला दे दिया। अब नमाज पढ़ रहा है, रोजे भी रखता है और दूसरे दीगर तमाम आमाल को करता है। फिर कोई जरूरत पेश आ गई, फिर दुआ मांगा, काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़ करके दुआ मांगा, तवाफ करते हुए दुआएं मांगा, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, मैं मस्जिद कूद जाता नहीं, मक्का मस्जिद का एड्रेस में भूल जाता हूं, मस्जिद को आना छोड़ दिया। ऐसा नहीं, वामिलुस सालिहात, दिन हो रात हो, खुशी हो गमी हो, बीमारी हो तंदुरुस्ती हो, सेहत हो, कुछ भी हो, हमारी ड्यूटी हमें पूरी करना, बराबर मुसलसल नेक आमाल करना। अब आदमी कामिल ईमान पर भी आ गया, नमाजें भी पढ़ रहा है, तमाम आमाल जो कुछ भी उसके ऊपर करना जरूरी है वो कर रहा है, इतने से काम चलेगा नहीं, तीसरा काम भी करो। वतवासौ बिल हक, जो काम तुम कर रहे हो नेक आमाल और तुम्हारा ईमान सही है, तुम्हारे अकायद सही है, यही बातें दूसरों को बताया करो।
दूसरों की तबलीग करो, दूसरों को नेक रास्ते पर लाने के लिए अच्छी बातें बयान करो। नमाज के फजाइल, रोजे के फजाइल, सच बोलने के फायदे, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल किसको कहते हैं, कुरान क्या है, अच्छी बातें, अल अम्र बिल मारूफ, अच्छी बातें लोगों के सामने बयान करो, उनको तरगीब दिलाओ, शौक पैदा करो उनके दिल के अंदर, उनके दिल के अंदर शौक पैदा करो ताकि वो भी तुम्हारी तरह हो जाए। अब घर का जायजा लीजिए, घर में मर्द नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, उसका बेटा नमाज को नहीं आता, उसकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती। लोग क्या समझते हैं, हाँ उन्होंने बड़े दीनदार, कौन दीनदार है, सिर्फ बाप दीनदार है, बाकी सब दीनदार नहीं, मुर्दार है, उनका दिल मरा हुआ है, दिल के अंदर क्या है, ईमान नहीं है। और ये जो बाप है ये भी क्या, बेगैरत है। अगर बाप अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म नहीं देता, पर्दा नहीं कराता, अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता, बहन को पर्दा नहीं कराता है, नमाज का हुक्म नहीं करता है, बच्चे नमाज न पढ़ने पर उनकी तंबी नहीं करता, 10 साल या उससे ऊपर हो जाने पर नमाज न पढ़ने पर बाप उनको मारता नहीं है, तो वो बाप नहीं है, बल्कि बाप खुद उसको जहन्नम का रास्ता दिखाने वाला। बाप खुद जो है उसको जहन्नम के रास्ते पर ले जा रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारे दिल के अंदर ईमान है, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों के भी बचाओ, नारा, जहन्नम की आग से। खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। तो तीसरा काम यह करना है कि पहला काम क्या, कामिल ईमान वाला बनना, दूसरा काम अमले सालिहा, नेक अमाल मुसलसल करते रहना, और तीसरा काम दूसरों को भी ईमान की और अच्छे अमाल की दावत देना, अपने घर वालों को बुलाना, पड़ोसियों को, मिलने जुलने वालों को, सबकी इस्लाह की फिक्र करना। चौथा काम क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, गुनाहों से रोकना, गुनाहों से रोकना, झूठ से, गीबत से, शराब से, जिना से, नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से लोगों को रोकना, समझाना उनको। हमारे बच्चे रास्ते में, गलियों में इधर उधर बैठ करके गेम खेलते रहते हैं, मुसलमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको समझाए, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी आंख खराब हो रही है, तुम्हारे कान खराब हो रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। कोई बाप अपने बच्चे की फिक्र नहीं करता, कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की फिक्र नहीं करता। शराब पी रहा है कोई, ये देखता है, खामोश रह जाता है, प्यार और मोहब्बत से उसको समझाने की फिक्र नहीं करता। कम से कम अदना दर्जा क्या है, दिल के अंदर उस बुराई को बुराई समझे और उस भाई के लिए अल्लाह से दुआ करे। अगर सामने वाले को समझाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बोलने जाएंगे तो वो डांटेगा, मारेगा या गाली देगा, दिल के अंदर आपको ऐसा लगता है कम से कम वो जो बुरा काम कर रहा है उसको बुरा समझा जाए और उसके लिए तहज्जुद में उठ करके दुआ मांगी जाए। हम लोग ये दुआ तो मांगते हैं, बाजू वाले का कोंपा खाली हो जा को उसके घर में है सो पूरा माल मत्ता मेरे घर में आ जाना, ये दुआ तो जरूर मांगते हैं। सगा भाई अपने सगे भाई के लिए आज बद्दुआ कर रहा, बेटी अपनी मां के लिए आज बद्दुआ कर रही है। अगर उसकी मतलब का रिश्ता नहीं मिला, वो जिसको चाहती है उसके खिलाफ माँ बाप है, बेटी बद्दुआ करती है माँ बाप के लिए, बेटा बद्दुआ करता है माँ बाप के लिए। ऐसा हमारा मुसलमान आज बेगैरत और बेशरम हो गया है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वतवासौ बिस्सब्र, गुनाहों से लोगों को रोकना,
जिस तरह खुद रुका हुआ है, आमाले सालिहा करते हुए जा रहा है, इसी तरह दूसरों को भी बुराइयों से रोकना, समझाना कि फलां चीज गुनाह है, फला काम गलत है, फला काम करने से हमें अल्लाह को कल मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा। तो जो लोग ये 4 काम करने वाले हैं, कामिल ईमान रखते हैं, नेक आमाल पर जमे रहते हैं, दूसरों को भी कामिल ईमान और नेक आमाल की दावत देते हैं और दूसरों को बुराइयों से रोकते हैं, समझाते हैं, ये लोग खसारे में नहीं है, ये लोग घाटे में नहीं है। अब हम जायजा लें, नया साल आ रहा है, हमारी जिंदगी में एक नया साल अंग्रेजी एतबार से आ रहा है, तो हमने गुज़श्ता साल में क्या किया है? हमारा जो गुजरा हुआ साल है, इसमें हमने क्या किया? क्या हमारा अमल, क्या हमारा ईमान कामिल रहा? क्या हमारा अमल सही रहा? नमाजें हमने सही पढ़ी हैं? रमजान आया था, रोजे कितने रखे थे? ज़कात का वक्त आया था, ज़कात अदा की थी या नहीं? हज का मौसम आया था, हज को हम गए थे कि नहीं गए थे? जितने भी आमाल हैं, जो हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उनके बारे में सोचें। आदमी रोजाना अपनी दुकान का, कमाई का हिसाब लगाता है कि आज मैंने कितना कमाया है, कितना खोया है, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। आज मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है मैंने, नहीं सोचता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु यऊदु फबायु नफ्सहु, हर आदमी रोजाना सुबह करता है, हर आदमी रोजाना सुबह करता है, तो वो अपनी जान को तिजारत पर लगाता है, अपनी जान को कारोबार पर लगाता है। कोई अपने इस कारोबार में फायदा हासिल कर लेता है, कोई अपने इस कारोबार में नुकसान पाता है, खसारे वाला बन जाता है। हमारी जिंदगी कारोबार पर लगी हुई है, जिस तरह बर्फ वाले का बर्फ कारोबार पर लगा हुआ है, अगर उसने अपने बर्फ को वक्त खत्म होने से पहले पहले बेच नहीं दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसी तरह आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए, हमारी जिंदगी कारोबार पर लगी हुई है। अगर आज के इस दिन वाली जिंदगी को हमने सही जगह नहीं लगाया तो फिर आज का दिन खत्म हो गया, ये साल हमारा खत्म हो गया। अब हमें जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद। वो गुजरा हुआ साल वापस आने वाला नहीं, गुजरा हुआ महीना वापस मिलने वाला नहीं, गुजरा हुआ हफ्ता वापस आने वाला नहीं, गुजरा हुआ दिन वापस मिलने वाला नहीं है, गुजरा हुआ घंटा, सेकंड वापस मिलने वाला नहीं। हमने उस सेकंड में क्या किया है, अच्छा किया या बुरा किया, ये सोचना है। रोजाना रात में सोते वक्त अपनी उस एक दिन की जिंदगी का जायजा लें कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह को राजी करने वाला कौन सा अमल किया, नाराज करने वाला कौन सा अमल किया। वो दुआ मांगे, जो अच्छा काम हुआ उसका शुक्रिया अदा करे, जो बुरा काम हुआ उससे तौबा करे और अज़्म मुसम्मम करे कि अल्लाह कल मैं फला गलत काम नहीं करूंगा। एक हफ्ता गुजरा जुमा से लेकर जुमा तक, तो जुमा के दिन तौबा करे, ऐ अल्लाह इस एक हफ्ते में तूने मुझसे नमाज पढ़वा दिया, इतना कुरान मैंने पढ़ा, इतनी मर्तबा मैंने तस्बीह पढ़ी है, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्रिया अदा करे। और एक जुमा से लेकर एक जुमा तक जो गुनाह हुए उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करे, रो करके अल्लाह से माफी मांगे। इसी तरह एक महीना खत्म हुआ तब भी यही काम करे, एक साल खत्म हुआ तब भी यही काम करे। इस तरह अगर मुसलमान, मैं और आप रोजाना करते रहेंगे,
ہفتے میں کرتے رہیں گے, مہینے میں کرتے رہیں گے, اور 1 سال کے ختم ہونے پر اور نئے سال کے آنے پر کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور ہمارے برے اعمال میں, گناہوں میں کمی آتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ ہم کامل مسلمان کہلانے کے لائق بن جائیں گے. تو نیا سال آ کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, برائیوں میں بالکل نہیں جانا. بچے ضد کریں, ان کو پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ جو گریٹنگ کارڈز ہے, یہ پٹاخہ ہے, یہ مٹھائی بنا کر کے تقسیم کرنا ہے, یہ نئے کپڑے وغیرہ سلوانا پہننا ہے, یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی جس قوم کی مشابہت کو, سملیرٹی کو اپناتا ہے, وہ اسی قوم کے اندر شمار کیا جائے گا. یہ غیروں کا طریقہ ہے. غیروں کے طریقے کو اگر ہم نے اپنا لیا تو پھر قیامت کے دن ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ہمارا حساب لیا جائے گا. بچوں کو, گھر والیوں کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں غیروں کا عمل اختیار نہیں کرنا ہے. ہمارے اسلام کے اندر خود اتنے اعمال ہیں, انہی کو کریں, اور رسم و رواج سے, بدعات سے, خرافات سے اور کفر اور شرک والے اعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں. اللہ پاک ہماری زندگیوں کو ایمان اور اسلام پر لگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.